हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है ये पेपर है सेट थ्योरी एंड नंबर थ्योरी। सो सबसे पहले 2 यूनिट जो है सेट थ्योरी, वो हम सेट थ्योरी शुरू करेंगे यूनिट 1 से। और दूसरा जो है इसके सॉफ्ट कॉपी हमने आप लोगों को भेज दिया, उसको डाउनलोड करके उसमें देख लीजिएगा। प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी कई शॉप से अवेलेबल नहीं है या कुछ हो, कोई दिक्कत हो तो उसको जो है ऐसे ही देखिएगा। सॉफ्ट कॉपी में हम पेज नंबर बता देंगे प्रॉब्लम्स के, तो उसी में आप लोग अपना चेक कर लें, ठीक है। ये है सेट थ्योरी यूनिट 1। सबसे पहले तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सेट. It is well known to you, and already I have discussed in the last introduction class. So it is a collection of well-defined objects. Second, Cartesian product. This is also discussed. We have discussed. Let A and B two sets. The product set or Cartesian product of A and B denoted by A cross B, and is the set of all ordered pairs AB, A from A and B from B. इसी तरह सिमिलरली वी कैन राइट ए क्रॉस ए इज आल्सो कॉल्ड एस स्क्वायर ए. ए क्रॉस ए के एलिमेंट देखिए, ये नॉट, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए ए, इट इज ऑफ द फॉर्म ए बी, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, बट ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी आल्सो. ओके, तो नेक्स्ट रिलेशन, let A and B be two sets. A relation from A to B is a subset of A cross B. Any subset, you take any subset, it will become a relation. Whatever big or whatever small subset of A cross B, it is a function, no problem. Now, sorry, relation. Now function A from A to B is a relation from A to B, that is a subset of A cross B, such that each A from A belongs to a unique ordered pair A, B in F. This line is important, for such that each A in A belongs to a unique ordered pair A, B in F. जो हम जनरली पढ़ते हैं कि डोमेन के हर एक मेंबर की यूनिक इमेज हमें मिलनी चाहिए. We need to get an image of each member of A, and this image is unique. अब remark, by the definition of these two, it is clear that every function is a relation but converts. Not true. Here, example, suppose A is a set and G and H be two relations on A, then G is not a function from A cross A, since G does not assign any image to 2. G is not a function because you see here in the domain 2 is here, okay, but this 2 has no image in this. You see here 1 goes to 2 and 3 goes to 1, but 2 has no image, so that is why it is not a function, but it is a subset of A cross B, so it's a relation. Similarly, H 1 3 2 1 1 3, in H you see 1 goes to 3 and here 1 goes to 2. You see 1 goes to 3 and 1 goes to 2. So means 1 has different image. We need every element from this set has a unique image. But here we will see 1 goes to 3 and 1 goes to 2. That is 1 has two different images, not a unique image. So therefore H is also not a function, but since it is a subset of A cross A, so it is a relation on A, but it is not a function on A. Now come to the problem, question number 4.2, page number 105. Here is the book is here. You see page number 105 and question number 4.2. You will see in the PDF file. Okay. Now we will go for this problem. Suppose our set is 1 2 3 4, set of 4 elements 1 2 3 4. Okay. Now determine whether or
not each relation is a function from x to x. इसमें ये सब आपको डिस्कस करना है कि फंक्शन है या नहीं है x to x में. पहला वाला प्रॉब्लम देख लीजिए, f ये रिलेशन दिया हुआ है, a subset of x cross x. Of course it is a subset of x cross x, it is a relation. अब इसको चेक करना है whether it is a function or not. So you see here you see here 2 has image 3 here, and here you see 2 has image 1. So this element 2 has 2 different images. Okay, are you viewing my slide? अरे स्लाइड दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. अब ये तो मैं इसका लेक्चर भी भेज दूंगा ना, बाद में तुम लोग अपना देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं जरूरत हो तो यहाँ देखिए तो 2 के 3 and 2 के 1. So 2 has 2 different images, so it is not a function. अब आइए G में सेकंड B part. G is another collection of members of x plus x, so it is a relation on x, no problem. अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं. अब इसमें देखिए हमारे पास डोमेन में फंक्शन में क्या होना चाहिए, डोमेन के हर मेंबर की इमेज मिलना चाहिए. आप इस G में देखिए 2 के कोई इमेज नहीं है, 3 goes to 1, 4 goes to 2, 1 goes to 1, लेकिन 2 का कोई पेयरिंग नहीं है. ईच एलिमेंट का पेयरिंग होनी चाहिए. तो 2 का कोई मतलब डोमेन के कोई एलिमेंट को हम नहीं छोड़ सकते. ओके, बट हियर देखिए 2 का कोई इमेज नहीं है सेकंड पार्ट में देखिए तो, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन. नाउ कम टू थर्ड पार्ट, एज में यू सी ऑर्डर्ड पेयर्स, देयर आर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन कवर होना चाहिए, 1 2 3 4. हियर 1 goes to 4, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 4, 2 goes to 1. So all elements are here, 1 2 3 and 4. It covering all elements. अब हमें चेक करना है यूनिक है या नहीं. या तो डोमेन के एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए किसी ऑर्डर्ड पेयर के साथ, या रिपीट हो रहा हो तो सेम होना चाहिए. जैसे 2 का 1 इमेज 1, तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, बट बोथ दी ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, सो नो प्रॉब्लम. अब यहाँ 2 1 और यहाँ 2 3 और इधर आता है फिर खोजना पड़ता है. हाँ बताइए. सब चलता है सर, सब चलता है, सब चलता है. हेलो, ठीक है. ये देखिए तो ये फंक्शन हो गया. फिर सब एलिमेंट के यूनिक इमेज मिल गया आपको. डोमेन के सारे एलिमेंट 1 का भी 2 का भी सबके यूनिक इमेज मिल गया, सो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन. ये एक ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हो रहा है, सो नो प्रॉब्लम. आंसर सी इज यस, ऑल्दो 2x इज. अब इसमें रिमार्क ये है, a subset f of x plus x is a function if and only if each a if and only if each a in x appears as the first coordinate in exactly one ordered pair in f. जो हमने यहाँ देखा है C में, exactly एक ordered pair में डोमेन के एक मेंबर होना चाहिए, ये कह रहे हैं. ये कब किसी कोई भी आप सबसेट ले लीजिए x plus x के, कब वो जो है when it will become a function, इसको कब फंक्शन कहेंगे, क्योंकि रिलेशन तो हो जाएगा, सबसेट है, कलेक्शन है, तो रिलेशन में नो प्रॉब्लम. अब हम फंक्शन कब कंफर्म होंगे कि यस इट इज अ फंक्शन. ये कह रहे हैं इट इज ए इफ एंड ओनली इफ कोई तुम सब ले ले. Maybe there are sounds from my fans, so I switched off my fans. ये जो है ये क्राइटेरिया है कब आप कलेक्शन ले रहे हैं. अब इस कलेक्शन कभी फंक्शन बनेगा कभी नहीं बनेगा, तो कह रहा है कब इट विल बिकम ए फंक्शन, व्हेन इट विल बिकम ए फंक्शन. इफ एंड ओनली बनना ही बनना है कि
डोमेन का वो जो सेट है उस सेट का हर एक मेंबर हर एक ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। जैसे यहाँ सी पार्ट में आपने देखा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, हर एलिमेंट उस सेट का जो है एक एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। appears as the फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट डोमेन से है, सेकंड कोऑर्डिनेट वहां से है, कोडोमेन से है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ हमारा कंडीशन नहीं है, वहां कुछ भी हो, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट्स के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कम भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक एक मेंबर कम से कम होना चाहिए, और उससे ज्यादा हो रहा हूं तो वो ऑर्डर्ड पेयर फिर इक्वल होना, ठीक है। इससे कोई रिपीट हो रहा हो एलिमेंट किसी फास्ट, जैसे यहाँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही एग्जांपल है। अब यहाँ देखिए 2 बार आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट 2 बार हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि रिपीट जब होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये 2 1 एंड हियर इट इज 2 1। अदरवाइज 2 1 और 2 3 होता देन उस टाइम हम नहीं कर सकते थे उसको फंक्शन, क्योंकि 2 का इमेज डिफरेंट हो जाता। यहाँ 2 के भले मतलब ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हो रहा हो, बट दोनों एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर में 2 के इमेज जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब सेम चीज सेम थिंग है, तो नो प्रॉब्लम। इस तरह की यही चीज कह रहा है यहाँ, देखिए अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, एक तो यूनिकली एक एक करके वो एग्जिस्ट होगा वहां उसमें ऑर्डर्ड पेयर में, और कोई रिपीट हो रहा हो, एक से कोई मेंबर रिपीट हो रहा हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो उस केस में वो दोनों वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स रिपीट हो रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स सेम होना चाहिए, फिर तो वो प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो रिपीट हो रहा है पहला मेंबर, लेकिन उधर हमें इमेज डिफरेंट मिल जाएगा। जब ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होगा इसका मतलब उसका सेकंड स्लॉट डिफरेंट है, तो उस केस में फंक्शन नहीं होगा। So now come to another thing. This is what called partition. What is a partition of a set? किसी सेट के पार्टीशंस क्या होते हैं, ठीक है। पार्टीशन जैसे तुम लोग समझते हो वही ऐसे ही है, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। पार्टीशन मतलब टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग पीस करना, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा उसका डेफिनेशन अलग है। ये जो इसका डेफिनेशन है यही कह रहा है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप ले लीजिए। So a partition of S is a subdivision of S into non-overlapping, non-empty subsets. Non-overlapping, कौन आ रहा है किसी के, वो तो नहीं है, कोई वेटिंग में तो नहीं है। Yes. हाँ, पता नहीं और कोई वेटिंग में तो नहीं है। कोई वेटिंग में हो तो ग्रुप में मैसेज कर दे, इसमें देख लेंगे हम। ओके, सो it is a subdivision of S into non-overlapping and non-empty subsets। हर उसका जो टुकड़ा है, एक सेट को आपने कोई 4 पार्ट किया इक्वली मान लीजिए, तो उस 4 पार्ट की कंडीशन क्या होना चाहिए, वो चारों पीस जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। कोई मेंबर, इसका मेंबर उसमें नहीं होना चाहिए, उसका मेंबर, मतलब मेंबर रिपीट्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल डिस्टिंक्ट। तो उसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, ये तो हो गया एक कि हम कह रहे हैं कि नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी नॉन ओवरलैपिंग को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, ये चीज है। यहां देखिए आप प्रिसाइजली कि पार्टीशन ऑफ एस इज ए कलेक्शन ऑफ ई मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ए आई। हमने मान लिया A1 A2, कोई एस, हमारे पास कोई सेट एस है, उसका हमने 4 टुकड़ा बना लिया, A1 A2 A3 A4। इन चारों पार्ट की देखिए कलेक्शन हमने ले लिया, ये आई सफिक्स में आई मतलब आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3 4 सपोज, तो 4 टुकड़ा हो गया। 5 लेंगे आई 1 to 5 तो 5 टुकड़ा हो जाएगा। हमने मान लिया कुछ पीसेस कर दिया हमने, दीज आर ए आई मतलब A1 A2 A3 A4 इस तरह की जितने टुकड़ा किया है ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। ये सब जो है नॉन एम्प्टी हमने लिया है A1 A2 A3 A4 सच दैट। अब कंडीशंस 2 है,
अब इसमें बाद आपको क्या चेक करना है, कह रहे हैं कि ये जो एआई जो कलेक्शन लिया है आपने नॉन एम्प्टी सेट्स की, ये कब पार्टीशन होगा, व्हेन दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स विल बिकम ए पार्टीशन। आपको सबसे पहले ये लेना है, सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, ईच एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एआई में बिलोंग करना चाहिए। ये आपके पास मान लीजिए सेट में 50 एलिमेंट है, आप कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली चूज करिए, वो मान लीजिए ये चार सेट की कलेक्शन लिया, 4 सबसेट्स की सपोज या 10 जो भी है, तो ये जो एक एलिमेंट हमने 50 एलिमेंट से उठाया, वो एलिमेंट एग्जैक्टली किसी एक पार्ट में जाना चाहिए। ये नहीं है कि ये एलिमेंट हम देख रहे हैं A1 में भी है, ये एलिमेंट A3 में भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जैक्टली किसी एक पार्टीशन एक यस यस, इज इट ऑडिबल, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो एक एक एलिमेंट जो है वो किसी एक टुकड़ा में बिलोंग करना चाहिए। ये नहीं मतलब ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट उसमें भी है, तो फिर वो नॉन ओवरलैपिंग वाला बात खत्म हो जाएगी। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि वो, इसका मैथमेटिकली यही कह रहे हैं, दी सेट्स AI आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। इसका मतलब यही हुआ है कि दी सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। कोई भी सेट्स का सबसेट जो लिया है हमने कलेक्शन, इसका मेंबर उसमें नहीं हो सकते, उसका मेंबर इसमें नहीं हो सकते, सब अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है। मतलब एग्जैक्ट जो डिस्टिंक्ट मेंबर थे उन सबकी। इसका मैथमेटिकल ये है, इसका मैथमेटिकल जो ये है कि इफ the sets AI are mutually disjunct, that is if AI not equal to index same नहीं है, index same नहीं है, तो their intersection is empty, या तो इक्वल या तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, और दो डिफरेंट सेट लेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन मैथमेटिकली इसे ही कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट। दो आप डिफरेंट सेट ले लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, उसका कह रहा है कि एम्प्टी सेट है, इसका मतलब दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं है। जो चीज हम कहना चाह रहे हैं, जो अलग अलग टुकड़ा है, पीसेस हैं, वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट है, उसमें इसका मेंबर उसमें नहीं है, इसका मेंबर उसमें नहीं। सपोज जैसे मान लीजिए 1 to 40 कोई सेट है, हमने ले लिया 1 2 3 4 अप टू 40, हमने उसका 4 टुकड़ा ऐसे बनाया, 1 to 10 A1, 11 to 20 दूसरा सेट A2, 21 to 30 तीसरा सेट A3, A4 जो है 31 to 40। तो ये 4 डिफरेंट सेट हो गया और कोई किसी में नहीं है। 1 से 10 यही इसमें है, 11 से 20 इसमें है, 21 से 30 इसमें है, और 31 से 40 तक दूसरे सेट में। तो ये चारों सेट जो है 40 वाला सेट की 4 टुकड़ा हो गया, और वो चारों जो है पीसेस जो है वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट है, किसी का मेंबर दूसरे में नहीं है। कोई भी दो सेट उठाएंगे, ये नहीं है कि मतलब आपस में कोई भी ले लीजिए, इसके साथ ये हो सकता है डिसजॉइंट हो सकता है तीसरा सेट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ होना चाहिए। हर किसी भी सेट को रख के दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, हर ईच दे आर म्यूचुअली उनके इंटरसेक्शंस आपको एम्प्टी सेट मिलना चाहिए, तभी उसको कहेंगे नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये हो गया आपका पार्टीशन। अब ये जैसे हम प्रैक्टिकल हम एग्जांपल पे बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये भी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 73 में है, एग्जाम्पल 3.10 पेज नंबर 73, ये सब लिखे हुए यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आप अपनी, उसमें जब सॉफ्ट कॉपी खुलेंगे ये सारी चीजें वो उसमें होगा। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है लिया है वो सब किताब से ही है और उसमें मेंशन्ड है पेज नंबर और। So consider the following collection of subsets of a set S 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो सेट है हमारा एक से लेकर 9 तक मेंबर सेट 1 2 3 4 5। अब इसमें तीन देखिए, तीन पार्टीशन दिया गया है, तीन डिफरेंट वो बनाया गया है कलेक्शन। 1 2 3 5 का एक सेट है, 2 6 का एक सेट है, एंड नहीं दे रहे हैं सर आ रही है बात। यस सर।
ठीक ठीक है चलिए। तो ये देखिए हमने 3 डिफरेंट कलेक्शन लिया है। अब इसको किसको किसको कौन से कलेक्शन को हम पार्टीशन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो ये एक सबसेट है 1 3 5 से एक बना लिया, 2 6 से दूसरा सबसेट बनाया, और 4 8 9 ये 3 टुकड़ा किया। इस सेट को हमने ये 3 टुकड़ा किया। इन 3 टुकड़ा की कलेक्शन हमने लिया है। क्या अब इस कलेक्शन को हम पार्टीशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो क्या उसमें क्या कमी है देखिए। तो पहले कमी ढूंढिए। P1 इट इज नॉट ए पार्टीशन। ये पहला कलेक्शन जो है ये हम कह रहे हैं, पहला कलेक्शन जो है ओके चलिए, ये पहला कलेक्शन जो है ये वन कलेक्शन, ये क्या ये पार्टीशन नहीं है। क्यों नहीं है देखिए। Copia o prastata, idaría con mamá. ओके ये क्यों पार्टीशन नहीं है ये देखिए। आपको 7 एक मेंबर है, किसके हैं, सेट से कोई मेंबर उठाइए आप, कोई भी उठाइए। तो हमने 7 उठाया। 7 डज नॉट टू बिलोंग टू, वो एग्जैक्टली किसी ना किसी एक में बिलोंग करना चाहिए। सेट का कोई भी एक मेंबर, ये टुकड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए जो सेट का मेंबर को कवर ना करे, सारे सेट के मेंबर को कवर करना चाहिए, याद रखिएगा। ये आप ऐसे टुकड़ा ना बनाए कि आप ओरिजिनल सेट के एलिमेंट को छोड़ दें। ठीक है, जो भी टुकड़ा, जितने टुकड़ा बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे, उन सब में ओरिजिनल सेट्स की मेंबर होनी चाहिए। और ओरिजिनल सब मिला के जो है, सब मिला के ओरिजिनल सेट्स के मेंबर नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये सेट लिया है, 3 टुकड़ा किया है, लेकिन टुकड़ा में क्या किया है हमने, हमसे गलती किया हुआ है। ये जो 7 है मेंबर, ये 7 जो मेंबर है वो देखिए किसी भी पार्टी टुकड़ा में नहीं है। इसका मतलब वायलेट कर रहा है, हमारा डेफिनेशन वायलेट कर रहा है। पहला कंडीशन, ये वाला पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन, ईच ए बिलोंग्स टू एस टू दी वन ऑफ दी एआई, किसी एक टुकड़ा में होना चाहिए। तो वही हमारा पहला ही फेल हो गया। 7 जो है वो किसी भी टुकड़ा में नहीं है, मतलब किसी भी सबसेट में नहीं है। तो ये वायलेशन हो गया, पार्टीशन का डेफिनेशन वायलेंस मतलब ये हो गया, फेल हो गया। ओके दूसरे सेट, दूसरे कलेक्शन में आइए आप। तो अपने आप में म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आवाज आ रही है डॉगों की। ओके लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। अब ये सेकंड में, ये सेकंड कलेक्शन, दूसरा हमने कलेक्शन 3 सबसेट का लिया है, उसी सेट का, एस का 1 2 3 अप टू 9 का। देखिए पहला क्या है 1 3 5, दूसरा कलेक्शन है 2 4 6 8, तीसरा जो है वो 5 7 9। ये 3 टुकड़ा किया है हमने उस सेट को। अब ये 3 टुकड़ा पार्टीशन की कंडीशंस वाले 3 टुकड़ा है या नहीं, हमें चेक करना है कि क्या ये 3 टुकड़ा हमने सही से 3 टुकड़ा लिया है जो पार्टीशन बनाता है या नहीं, या इनमें क्या कमी है, हमें पीसेस करने में हमें क्या कमी रह गया, ये चीजें चेक करनी। हाँ अब ये देखिए P2 ये नहीं है, ये पार्टीशन क्यों नहीं है। अब देखिए कह रहा है 1 3 5 और दूसरा सेट जो है 5 7 9, इन दोनों में देखिए तो क्या क्यों नहीं है, ये 5 कॉमन आ रहा है। हमने पहले ही कहा जितने भी आप टुकड़ा कर लें, जितने भी आप टुकड़ा कर लें उसमें एक के एलिमेंट दूसरे में नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए वो टुकड़ा। सब मेंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, मेंबर्स यहाँ से मेंबर वहां में नहीं होना चाहिए, वहां का मेंबर यहाँ नहीं होना चाहिए, सब अपने आप में अलग मेंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ ये 5 इससे एक टुकड़ा में है, और दूसरे तीसरे जो ये थर्ड जो पीस है तीसरे टुकड़ा में जो है वो देखिए 5, वहां भी फिर 5 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सेट टुकड़ा किया है उसमें हमने सही से नहीं किया, हमने पार्टीशन के हिसाब से नहीं किया। ये तो ऐसे ही आपने मन जैसे कहा हमने ऐसे ही टुकड़ा ले लिया, इसका मतलब सो इट इज नॉट ए पार्टीशन। पार्टीशन की डेफिनेशन फेल हो रहा है यहाँ, बिकॉज सो ये टाइम लिमिट आ गया। हाँ 40 मिनट हो गया, 40 मिनट कहाँ,
लिमिट आ गया सर ऊपर 10 मिनट। अब नहीं कंटिन्यू नहीं हो सकता? बताइए। तो 5 मिनट और चलेगा, हाँ 5 मिनट और चलेगा सर अभी। क्या करें? हाँ बताइए बताइए। सर 5 मिनट अभी चलेगा और। अच्छा चलिए, वो तो फिर आएगा, जो खत्म होगा तो बताएगा ना। तो ठीक है, देखिए ये तो मैं जल्दी तो अब दूसरे दिन और आराम से मतलब और कवर हो जाएगा। आज भी बहुत हो गया, लिखता तो उतना भी नहीं लिख पाता शायद। ये देखिए P3, यस इट इज ए पार्टीशन। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 3 टुकड़ा हमने है हमारे पास एग्जैक्टली। देखिए कोई भी एक मेंबर आप सेट से उठाइए। 1 3 5 यहाँ है, 2 2 4 6 8 यहाँ है। नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। 7 9 यहाँ है, तीनों टुकड़ा। कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, किसी एक मेंबर में मिल जाएगा, किसी एक टुकड़ा में मिल जाएगा आपको। और सबका यूनियन लीजिए, सबका यूनियन, तीनों का यूनियन लीजिए। देखिए आपका ओरिजिनल पार्टीशन का मतलब भी यही है कि आप जितने टुकड़ा लिया है उन सारे टुकड़ा को आप यूनियन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए। पार्टीशन का यही तो होता है, सारे पार्टीशन मिलाओगे तो यू विल गेट ओरिजिनल सेट। ओके, सो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सब टुकड़ा अपना अलग अलग है, किसी में कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एस के सारे मेंबर उसी में है। देखिए कितना मेंबर हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेंबर है। 3 टुकड़ा मिला के हमारे सेट में भी 9 टुकड़ा, 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट तीनों टुकड़ा मिला के है। सब टुकड़ा अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। और सबका यूनियन हम लेंगे तो पूरा हमारा ओरिजिनल एस मिल जा रहा है। सो इट इज ए it satisfies all the conditions of a partition, so it is a partition. अब next class I will discuss representative and or system of representatives. Okay, so this is I think सर एक क्वेश्चन था all about today's class. Yes, बताइए बताइए। सर, एम्प्टी सेट इसका पार्टीशन होगा नहीं होगा? नहीं भाई, ये तो कह रहा है कि पहले डेफिनेशन में ही कहा जो भी टुकड़ा हो उसका नॉन एम्प्टी टुकड़ा वो होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। पार्टीशन किसी सेट का सबसेट पार्टीशन होता है, वो अलग बात है, ठीक है। हमें वो नहीं लेना है, हमें ऐसे पीसेस करना है, नॉन एम्प्टी पीसेस करना है। ओके 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 सर, ओके। हाँ, क्योंकि पार्टीशन का जो मेंबर होगा उसमें हमारे ओरिजिनल सेट के कोई मेंबर हम लेंगे तो वो किसी ना किसी एक में मिलना चाहिए। तो एम्प्टी सेट में कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन सर, इसके हर एलिमेंट का अलग अलग सबसेट वो होगा ना सेट इसका? वो हम आगे सर, इसमें 9 एलिमेंट्स थे तो डिस्कस करेंगे। हमें कितने मेंबर होंगे तो कितने सब इसके कितने पार्टीशंस होंगे, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, किसी भी कितने डिस्टिंक्ट मेंबर वाले सेट से कितना हमें पार्टीशंस मिल सकता है ना, वी विल डिस्कस आगे नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, रिकॉर्डिंग कितनी देर में शेयर करेंगे सर? हाँ रिकॉर्डिंग कब शेयर करेंगे? चलिए देखते हैं किसमें भेज दूं। उधर गूगल उसमें क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा, पेस्ट व्हाट्सएप पे कर लेंगे या लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए देखते हैं, यस सर, कोशिश करूंगा शेयर करने की। ओके ओके सर, यस सर, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर टाइम कब होगा? मतलब कल? हाँ सर वो थोड़ा सा पहले बता दिया करें सर, मतलब जैसे कि आज बताया था ना तो फिर पता नहीं चल पाता है। हाँ सर, वो एकदम से मैं तो बता दूंगा वो कि टाइम टेबल तो मालूम है ना मेरा सर मतलब ऐसे कि सर वो तो पता है, मतलब टाइमिंग नहीं पता। एक फिक्स टाइम ले लीजिए, जैसे कि ऐसे वो। चलिए मैं आई विल इन्फॉर्म वेल बिफोर द क्लास। ओके, ग्रुप में बता दीजिए। ठीक है। ग्रुप में मैंने वो कर दिया, तुम लोगों को देख लो कितने अटेंडेंस है यार। ओके सर, हैं 13 अटेंडेंस है, अटेंडेंस चल रहा है, ठीक है। वो देख लिया हमने इसका। अच्छा 13 है, 15 थे, 2 गायब। 12 है सर, 12 इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 13 लोग हैं। ओके ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। 12 हुए। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलिंग